Very good morning in Jai Hind class 12th. Once again, welcome to the online classes. Well, I have few announcements for you. The very first one is that I am going to take test on Monday. So, be prepared. Sunday is there with you. Get yourself prepared for chapter number 4. Alright? Okay. The another announcement is I have told you from the very beginning that start making the notes of every chapter. It will be good for you, right? So I will ask amongst anyone from you for the notes. That means amongst you I can ask any of the 2 students to submit their notes. For what you need to do is you need to WhatsApp it to me on my personal number. Okay? किसी का भी नाम मैं मेंशन कर दूंगी. I'll specify the name on the group and then you are supposed to send me the pictures of the notebook up to chapter number 4. Alright, I hope you have already starting chapter number 5 also. चलिए, now comes the chapter, that is 5th chapter, organizing. We are done with the concept of organizing as a structure and as a process. We are done with the importance of organizing. हमने steps पढ़े organizing के. We have discussed the functional and divisional structure of organization. We discussed the advantages, disadvantages and suitability of functional and divisional structure. राइट. फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, लाइक सपोज किसी एक चीज़ की पर्टिकुलर पेन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए गए, एक्टिविटीज़ ग्रुपिंग हो गई एक्टिविटीज़ की. डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट हुए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट. अब जो भी काम हो रहा है ये डिपार्टमेंट्स लुक आफ्टर कर रहे हैं. इफ़ द company is dealing with one or more products like pen, cosmetics, garments, तो उसके लिए they have created a separate division for that, क्योंकि एक ही जगह पर सभी चीज़ों की प्रोडक्शन नहीं हो सकती. It is not possible all the time. So they have created divisions जिसमें डिपार्टमेंट्स सब होते हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, HR. बट एक सेंट्रल हेडक्वार्टर होता है जो कि मेन ब्रांच होती है जहाँ पर सभी आपके एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट दी जाती है. ओके, सभी डिविजन्स की रिपोर्ट दी जाती है सेंट्रल हेडक्वार्टर में. नाउ yesterday I have told you to read the difference between the formal organization and informal organization, as we have discussed it yesterday. Sorry, it's functional structure and divisional structure. I have told you to read the difference between the functional and divisional structure, right? Okay, let's have a look. The very first one is meaning and nature. By doing this, your concepts will be more clear. If we are talking about the meaning and nature of functional structure, that is, functional structure always focus on functions, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फिनेंस, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं. एंड डिविजनल स्ट्रक्चर फोकस ऑन प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट लाइन, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर. दैट इज़ देयर नेचर. फॉर्मेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन फंक्शंस. सिंपल स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन परफॉर्म करना है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनेंस, HR. सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, एक ही चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है. इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स एंड सपोर्टेड बाय फंक्शंस. प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं, पेन, गारमेंट्स, आप कॉस्मेटिक्स, राइट, एंड दे आर सपोर्टेड बाय फंक्शंस. मतलब हर डिवीज़न में अलग अलग फंक्शंस क्रिएट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं. कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है. इतने सारे डिविजन्स की रिपोर्ट लेकर हेडक्वार्टर सेंड करना, इतने सारे डिविजन्स में फंक्शन करना, हेडक्वार्टर की फंक्शनिंग देखना. तो येस, द स्ट्रक्चर ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ कॉम्प्लिकेटेड. देन कम्स स्पेशलाइजेशन. Specialized treatment to each function.
Production manager knows very well what he is supposed to do. Marketing manager knows very well what the marketing manager is supposed to do. Finance के बंदे को पता है हमें क्या करना है. Specialized हैं सब. Specialized treatment to each product. पेन बन रहा है तो सब उसमें स्पेशलाइज्ड हैं. कॉस्मेटिक्स बन रहे हैं तो दे आर स्पेशलाइज्ड इन दैट. गारमेंट्स तो दे आर स्पेशलाइज्ड इन गारमेंट, राइट, एज दे आर डीलिंग विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स. Responsibility for profits. Responsibility for profit can't be fixed on single department. They all together have to work to achieve the organization objective. It can be fixed on each division. पेन की मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है प्रॉफिट क्यों नहीं आया? ठीक है. गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है वहाँ प्रॉफिट क्यों नहीं आया है? ठीक है. कंपैरिजन होने लगता है. गारमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, कॉस्मेटिक बहुत अच्छा चल रहा है, पेन का बिजनेस इज़ नॉट गोइंग गुड. सो यहाँ पर इट कैन बी फिक्स्ड ऑन ईच डिवीजन कि आपको इतना टारगेट हमें सेट करके देना ही देना है. हमारा इतना टारगेट आपको अचीव करना ही करना है. यहाँ पर पता है हो रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा है तो डेविएशंस लेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं. यहाँ पर कंपैरिजन भी हो जाता है, राइट. ओके. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट. डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ नैरो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. आपको पता है आपको एक ही प्रोडक्ट के साथ डील करना है, ठीक है, इसलिए थोड़ा नैरो हो जाता है. It is easier because autonomy to perform multiple function is given to divisional heads. यहाँ पर आपको पता है कि आप पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और थोड़ा टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि आप इसमें स्पेशलाइज्ड हो तो आपसे जवाब मांगा जाएगा, राइट. यहाँ पर आपको पता है इट इज़ ईजियर क्योंकि ऑटोनॉमी होती है, किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन इज़ गिवन टू डिविजनल हेड्स. आप अपना डिवीजन संभालो. आपका पेन का डिवीजन है ये आपके टेंशन है, आपका कॉस्मेटिक का डिवीजन है ये आपकी टेंशन है, ठीक है. बट यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट के साथ डीलिंग हो रही है तो प्रेशर रहता है. कॉस्ट फैक्टर. इकोनॉमिकल एज फंक्शनल डिपार्टमेंट आर नॉट डुप्लीकेटेड. इकोनॉमिकल होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साथ दे आर नॉट डीलिंग, ठीक है. यहाँ पर कॉस्टली होता है बिकॉज ईच डिवीजन हैज़ टू क्रिएट इट्स क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट. अपना अपना डिपार्टमेंट क्रिएट करना होता है हर डिवीजन को. हर डिवीज़न को अलग मशीनरी चाहिए, हर डिवीज़न को अलग इक्विपमेंट्स चाहिए, तो ऑब्वियसली ये कॉस्टली होता है. कोऑर्डिनेशन. वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी. येस, ठीक है. कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी. अगर मल्टी प्रोडक्ट हम यहाँ पर ले लें तो कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा एक ही जगह पर. लेस डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन द प्रोडक्ट डिवीजन. क्योंकि सारा जो फंक्शंस होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, लाइक सपोज पेन की हम बात करें तो वो उसके डिवीजन में ही देखे जाते हैं. अथॉरिटी. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी यहाँ टॉप लेवल के पास होती है. आपको पता है ना, क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं है, सिर्फ टॉप लेवल पूरा दिन हेड पर बैठकर सारे काम देखते हैं. यहाँ पर डिसेंट्रलाइज करनी पड़ती है अथॉरिटी, देनी होती है डिविजनल हेड्स को. हर टाइम तो बहुत सारे डिविजन्स में जाके नहीं देख सकता ना. ईच डिवीजन इज़ ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट. उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है. सूटेबिलिटी. suitable for medium sized firm having a single product or a small number of related product. पेन से जुड़ी हुई और चीज़ें जैसे उसकी निब बना ली, उसकी रिफ़िल बना ली, उसके लिए तो सूटेबल रहता है. एंड दिस इज़ सूटेबल फॉर लार्ज फर्म्स जो डील करते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ, राइट. I hope the difference between the functional structure and divisional structure is clear to all of you. बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक ही प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, लाइक सपोज पेन की मैन्युफैक्चरिंग टीवी की हो रही है, एसी की हो रही है, बुक्स की हो रही है, ठीक है, एक ही चीज़ के साथ डील अप करते हैं. डिपार्टमेंट सब होते हैं उसमें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, सब अपना अपना काम करते हैं, ठीक है. और डिविजनल स्ट्रक्चर में हैव अ लुक. फंक्शनल स्ट्रक्चर में पेन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिपार्टमेंट सब है बेटा, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, सब ने अपने अंडर पीपल हायर कर लिए हैं. ऑल राइट. पेन या साइकिल या कुछ भी चीज़ की एक प्रोडक्ट की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. HR को पता है उन्हें पीपल रिक्रूट करने हैं, लोगों की ज़रूरत है फाइनेंस में, मार्केटिंग में, सेल्स में,
या जहाँ भी काम हो रहा है, तो उनका ये काम होता है, लोगों के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट करना। फिनेंस, जो भी सेल हो रहा है उसका अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है, उसका अकाउंट देखना। मार्केटिंग का प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट को, उसकी सेल्स को बढ़ाना, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट टारगेट कंप्लीट करते हैं, ये तो मार्केटिंग करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट टारगेट कंप्लीट करते हैं, उन्हें दिया जाता है कि 200 आपको पेन आज सेल करने ही करने हैं, ये आपका टारगेट है। ये डिपार्टमेंट सब जगह मिलेंगे। यहाँ फंक्शनल में सिंगल प्रोडक्ट की बात हो रही है। डिविजनल में आप इतने अमीर हो गए हो, आपके पास इतना पैसा है कि आप सिर्फ पेन के साथ नहीं, आप साइकिल भी बनाना चाहते हो, चेयर भी बना चाहते हो, टीवी भी, या मैंने एग्जांपल दिया कॉस्मेटिक्स के साथ डील कर रहे हो, स्पोर्ट्स के साथ, गारमेंट्स के साथ, लेदर गुड्स के साथ। अलग अलग जगह पर आपने डिविजन्स बनाए, इनके डिवीज़न हेड बनाए, क्योंकि आप सब जगह नहीं जा सकते हो। कॉस्मेटिक के अंदर प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर डिपार्टमेंट क्रिएट किया। स्पोर्ट्स में प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर। इसी तरह गारमेंट्स और लेदर में आपने एक सेंट्रल हेडक्वार्टर बना लिया। इन सब डिवीजन्स की रिपोर्ट आपको, इन सब डिवीजन्स के डिवीज़न हेड आपको यहाँ पर देंगे। और यहाँ पर भी आपने प्रोडक्शन, फिनेंस, मार्केटिंग, एचआर बैठा रखे हैं, वो इन सब का प्रॉब्लम्स को यहाँ से सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है कि कोई यहाँ से ही अगर इमरजेंसी में कॉस्मेटिक्स में कोई एचआर से बंदा छोड़ के चला गया तो वो हेडक्वार्टर से भेज देते हैं। ऐसे भी होता है, क्योंकि काम तो एक ही इंसान का है, वही सब कुछ संभाल रहा है, उसने फैला रखा है, एक्सपेंशन किया हुआ है, डिवीज़न किया हुआ है, डिविजनल स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहा है वो, राइट। होप दिस टाइम both functional structure and divisional structure are clear to you. Now comes the formal organization. देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जाते हैं, काम करते हैं, लाइक आप स्कूल में काम कर रहे हो, तो आपको स्कूल में भी पता है कि हमें एक फॉर्मल तरीके से बिहेव करना है। वी हैव टू बी इन यूनिफॉर्म, वी नीड टू अटेंड असेंबली, वी हैव टू बी पंक्चुअल, वी नीड टू ग्रीट आवर टीचर्स, ठीक है। फॉर्मल ये सब कुछ होता है। आप दोस्तों के साथ होते हो तो इनफॉर्मल हो जाते हो, लाइक हाय, हेलो, पार्टी करते हैं, काइंड ऑफ, दिस इज़ इनफॉर्मल थिंग। इसी तरह कंपनीज़ में होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल कंपनी की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज़ डिज़ाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। उसमें कुछ भी हो सकता है। स्कूल हम खोल रहे हैं तो स्कूल में वी नीड अ प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल, then we need vice principal ma'am, then we need coordinators, then we need HODs, then we need teachers. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में वी नीड द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वी नीड अ प्रॉपर हिरार्की, कौन किससे कब बात करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, फॉर्मली सब काम कैसे करेंगे। स्केलर चेन पढ़ा है ना आपने। ये डिज़ाइन किया जाता है बिकॉज नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। एवरीबडी इज़ अवेयर किसके पास अथॉरिटी है, किसको रिपोर्ट करना है, कौन सीनियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, राइट। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़ टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. Coordination also proceeds according to a prescribed pattern in the organization structure. Coordination होना बहुत ज़रूरी है because everybody is aware about they are working together to achieve a specified objective. Right? Formally सब काम होते हैं. अगर आप अब आप 12th कर लोगे, इंटरव्यू देने जाओगे तो ऑफ कोर्स आप फॉर्मल ड्रेसअप होके जाओगे, टाई वाई लगा के, ऐसे थोड़ा ना जीन पहनी, टी शर्ट पहनी, काइंड ऑफ, और चल दिए जी इंटरव्यू देने। फॉर्मल चीज़, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ड्रेसअप होके जाओगे, राइट। दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. चलो इसके फीचर्स पढ़ते हैं. फीचर्स आर, इट स्पेसिफाई द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप among various job position and clarify who report to whom. बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है who is my boss, whom I need to report, who is having the authority. अगर मुझसे कुछ गलत काम हुआ तो whom I will be responsible to. ठीक है. यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑल टुगेदर वी हैव टू वर्क फॉर स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स. एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड. अच्छा, इसमें होता क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वेरियस डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स इंटरलिंक करते हैं और उन्हें कोऑर्डिनेट करना होता है फॉर्मल प्रोसीजर और रिलेशनशिप से. डिपार्टमेंट कैसे बेटा, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ये सब डिपार्टमेंट वैसे तो डिफरेंट है, इनका काम भी डिफरेंट है, ऑब्जेक्टिव तो सेम है ना.
ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट देना है, राइट? जिसके साथ ये काम कर रहे हैं, जिस डेजिग्नेशन पे ये काम कर रहे हैं, इनका काम है किसी भी तरह हमें हमारे प्रोडक्ट को सेल करना और कंपनी को प्रॉफिट देना है। सो सबके डिपार्टमेंट्स के जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं, एक फॉर्मल प्रोसीजर से काम करते हैं सब, ठीक है। यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है इसको टॉप मैनेजमेंट के थ्रू। जैसे आपके स्कूल में भी प्रिंसिपल सर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो फॉलो अप करना होता है सबको। इसी तरह टॉप मैनेजमेंट किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स डिज़ाइन करते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, हर किसी के साथ, हर जगह होता है ये, आपके स्कूल में भी होता है। आपकी क्लास में हम जाते हैं तो आपकी क्लास में टीचर्स अलॉट करते हैं मॉनिटर्स, यूनिफॉर्म ड्रेस यूनिफॉर्म चेकर, राइट, और फ्रूट ब्रेक के लिए फ्रूट चेकर, ऐसे ऐसे असाइन किया जाता है ना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। It places more emphasis on jobs to be performed than interpersonal relation. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपसी रिलेशंस का कोई इम्पॉर्टेंस नहीं होता है, उनका फोकस होता है सिर्फ काम करना, कोई सेंटिमेंट इमोशंस नहीं होते हैं पर्सनल के। वो अलग बात है, आपका कोई एम्प्लॉय बीमार है, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम है, तो टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट उनको सपोर्ट करें, हेल्प करें, बट उनका मोटिव बदलता नहीं, उनका मोटिव सिर्फ एक ही रहता है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, राइट। फॉर्मली सब काम होते हैं। अब अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। व्हाट आर दोज एडवांटेजेस? फर्स्ट वन इज फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर रिलेशनशिप्स क्लियरली डिफाइन होती हैं कि हु इज़ द मैनेजर, हु इज़ द सुपीरियर, हु इज़ द सबऑर्डिनेट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ईजी हो जाता है। क्लैरिटी ऑफ रोल्स एंड ड्यूटीज़, रोल्स एंड ड्यूटीज़ हर एम्प्लॉयज़ की उनको बता दी जाती हैं, जिससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होता। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मतलब मैंने भी ये काम कर दिया और आपने भी ये काम कर दिया, एक ही काम को दो लोगों ने कर दिया। सबको पता है कौन किस चीज़ के लिए अथॉरिटी है, पता है आपको 20 बच्चों में से 2 आर दी मॉनिटर्स, आउट ऑफ 20 2 आर दी मॉनिटर्स, तो दे हैव द अथॉरिटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल। 20 में से 2 बच्चों के पास आउट पास रहता है, तो दैट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी आउट पास, ठीक है। ये क्लैरिफाई करता है कि हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हुम, किसको रिपोर्ट करना है। ड्यूटीज़ वेल डिफाइंड कर दी जाती हैं, जैसे स्कूल में होता है, फॉर्मली सब कुछ होता है, ऐसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे जॉब करने कंपनी में, तो वहाँ भी सब कुछ फॉर्मली होता है, बिकॉज उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, अचीव द ऑब्जेक्टिव। To achieve the objective, they have to do everything formally, right? Then comes accomplishment of objective. हर डिपार्टमेंट, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे सेल्स है, मार्केटिंग हो या HR हो, जो उनको चाहिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। दे फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, उन्हें जो चाहिए वो प्रोवाइड कराकर वो अचीव करते हैं ऑब्जेक्टिव को। फॉर्मली दिया जाता है सबको, फॉर्मली चीज़ें मैनेज होती हैं। देन कम्स यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में हमने पढ़ा है, यूनिटी ऑफ कमांड इज़ द प्रिंसिपल। इट क्रिएट अ चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम सो एज टू अचीव यूनिटी ऑफ कमांड इन द एंटरप्राइज। क्या पढ़ा था हमने यूनिटी ऑफ कमांड में? एक बॉस से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, राइट। सो पता होगा कि ये चेन ऑफ कमांड फॉलो करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो दैट यूनिटी ऑफ कमांड अचीव कर सकें एंटरप्राइज में, ठीक है। स्टेबिलिटी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी लेकर आती है एंटरप्राइज में, क्योंकि स्टेप कैसे लेकर आती है? फॉर्मल अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो उसके लिए पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट कॉन्टिन्यूज डिस्पाइट, काम चलता रहता है हर डिपार्टमेंट का, चाहे ओल्ड एम्प्लॉय जॉब छोड़ दे या न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन कर ले, स्टेबिलिटी रहती है। पेन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने ही जॉब छोड़ दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीबडी आर देयर, एवरीबडी आर सो फॉर्मल, दे आर वेरी मच एक्वेंटेड अबाउट देयर वर्क एंड जॉब, उन सबको अपने बारे में पता है। तुरंत HR प्रोडक्शन मैनेजर हायर करेंगी या टॉप मैनेजमेंट प्रोडक्शन मैनेजर को हायर करेंगे और काम
चलता रहेगा. So that means there is stability in every formal organization. उनका टारगेट ही होता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, प्रॉफिट कमाना. अब एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, लिमिटेशंस भी होंगी. What are those? The very first one is procedural delays. Procedural delays means, बेटा प्रोसीड्यूरल डिले से ही पता चल रहा है, इसमें चेन ऑफ कमांड होती है. तो आपको थोड़े डिसीजन डिलेज हो जाते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हो. हर चीज़ फॉर्मल होगी, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर होता है. आपको क्या करना होता है, आपको पहले जो ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मिडिल लेवल से पूछना होता है, अपने सुपीरियर से पूछना होता है. सुपीरियर नीड्स टू टेक परमिशन फ्रॉम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एक हिरार्की फॉलो होती है एंड दिस माइट कॉज डिलेज इन सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन. आप कुछ भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट से नहीं कर सकते हो, अपना इनिशिएटिव नहीं ले सकते हो विदाउट इन्फॉर्मिंग योर बॉस. नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी. कितना भी आप में टैलेंट हो, कितना भी आप में टैलेंट हो, इट कर्ब द क्रिएटिविटी ऑफ द एम्प्लॉय. क्योंकि पॉलिसीज़ रिजिड होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स्ड होते हैं. आप कभी सोचो यार इन्होंने ये रूल रेगुलेशन बना रखा है, हमें नहीं फॉलो करना है, ऐसा भी कर सकते हैं, तो वो नहीं होगा. क्रिएटिविटी आपकी फॉलो नहीं की जाएगी. इट्स बिकॉज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एवरीथिंग शुड बी फॉर्मल, राइट. आप ये सोचने लगो कि आज मैं सारा दिन काम करता हूँ, टी ब्रेक 5 o'clock है, मैं 5 o'clock भी अपना पूरा टारगेट करके दूंगा, और आपका टी ब्रेक निकल गया है, आप 5:30 बजे जाते हो कि सर मैं कैन आई हैव माई टी नाउ. वो बोलेंगे भाई किस लिए, कि सर उस टाइम तो मैं काम कर रहा था. तो नो, व्हेन समथिंग इज मेड फॉर यू, दैट मीन्स सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू फॉलो दैट. फिर कोई कुछ नहीं देख रहा आपने क्या काम किया, कितना नहीं किया. यू हैव टू बी पंचुअल, यू हैव टू बी विजिलेंट, राइट. लैक ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन रिलेशंस. मेन फोकस रहता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पर. एन ऑर्गेनाइजेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट कंसिडरिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स में भी तो ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर देते हैं. पर्सनली किसी को नहीं देखते हैं, किसी की प्रॉब्लम्स, किसी का कुछ. दो व्हेन वी आर वर्किंग टुगेदर तो हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, बट एक दूसरे के बारे में ना सोच के मेन फोकस होता है ह्यूमन रिलेशंस के बारे में नहीं सोच के मेन फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए. आपके स्कूल में सब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, बट द मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्पार्ट गुड क्वालिटी एजुकेशन, एंड दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल, ऑफ एनी स्कूल, राइट. ओके, नाउ कम्स द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट कम्स इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? आप लोग सब लोग बैठे हुए एक कैफ़े में, ठीक है, आप और आपके साथ आपका एक फ्रेंड बैठा हुआ है, ऑल राइट. क्रिकेट मैच देख रहे हो आप लोग. आप क्रिकेट मैच देखने में आपके फ्रेंड का इतना ज़्यादा पिच हाई हो गया और वो बहुत खुशी के मारे पागल हो गया कि अरे वाह ये क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कितना अच्छा बैटिंग चल रहा है, कितना अच्छा बॉलिंग चल रहा है. साथ ही की टेबल में कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनका दे आर हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन क्रिकेट. सो वो लोग आपको ज्वाइन कर लेते हैं अल्टीमेटली, ठीक है. आपने कहा सर यहीं आकर बैठो टेबल पे, साथ मिलकर क्रिकेट मैच देखते हैं. वो अननोन पीपल भी दोस्त बन गए. दिस इज़ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. एक दूसरे को नहीं जानते हुए भी एक नेटवर्क बना लिया गया, बिकॉज दे हैव कॉमन इंटरेस्ट, तो वो साथ में बैठ गए, राइट. This is what informal organization about. It refers to the network of social relationship between the people in the organization based on personal attitude, sentiment, emotions, prejudices, likes and dislikes. Common like dislike. वो लोग एक हो जाएं. That is informal organization. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह के रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशन या प्रोसीजर को फॉलो अप नहीं करती हैं, राइट. जनरली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से एमर्ज होती है. कैसे? ऐसी कुछ गॉसिपिंग होती है ना, अरे यार सुना वो उसका प्रमोशन होने वाला है, सेम जो आपके ऑपोजिट बंदा है उसको इंटरेस्ट आ गया इसमें, क्योंकि उसको पता है कि उसका प्रमोशन होना था, लेकिन ही गेट टू नो दैट समबडी एल्स गेट द प्रमोशन, तो वो उसकी गॉसिपिंग में अल्टीमेटली इन्वॉल्व हो गया क्योंकि सेम कॉमन इंटरेस्ट है.
ठीक है। एक्चुअली अराउज कहाँ से होता है, ये एमर्ज कहाँ से होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। आप कितना भी रोक लो, आप लोगों को टीचर कहती हैं चुप हो जाओ चुप हो जाओ, पीछे बैठे हुए 2 लोग अपना एक गैंग बना ही लेते हैं, अगर मूड नहीं होता है पढ़ने का। कभी होता है ना ऐसा। इनफॉर्मली, फॉर्मली तो टीचर पोज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन यू दैट यू आर सपोज टू सिट क्वाइटली। इनफॉर्मली पीछे बैठे हुए 2 बैक बेंचर्स अपना एक कॉमन इंटरेस्ट बना लेते हैं कि आज मन नहीं है पढ़ने का, तो चलो ये क्रॉस और ज़ीरो खेलते हो ना आप गेम, तो वो खेल लेते हैं। 2 मैम पकड़ लेती हैं, फिर पिटाई हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन इनफॉर्मल आप ये काम करते हो, राइट। ओके, इनफॉर्मल रिलेशंस मे बी बेस्ड ऑन कॉमन टेस्ट, लैंग्वेज, कल्चर और सम अदर फैक्टर्स। प्री प्लान कुछ नहीं होता। अभी मैंने बताया ना, कैफ़े में 2 लोग बैठे हुए क्रिकेट मैच देख रहे हैं, 4 और लोगों को बैठा लिया कि भाई आओ तुम भी बैठो, साथ में बैठ के देखेंगे, जबकि दे आर अननोन टू ईच अदर, बट इंटरेस्ट कॉमन है, ठीक है। अब गॉसिपिंग होने लगती है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पे, तो अब जिसका इंटरेस्ट बीजेपीज़ में है तो वो उनकी बातें करेंगे, जिनका कांग्रेस के साथ है वो उनकी बातें करेंगे, जिसका जिसके साथ इंटरेस्ट होता है, राइट। सो दे आर नॉट प्री प्लान्ड, दे डेवलप ऑटोमेटिकली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल एंड द एनवायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपने आप इनफॉर्मल ग्रुप सी बॉस तो अलाउ नहीं करेगा कभी भी आपको कि 4 लोग एक जगह मिलकर गैदरिंग करो। स्कूल में पीटीज पकड़ लेते हैं ना बाहर जाकर, जब वाटर कूलर के पास खड़े होते हो 4 लोग, इस इनफॉर्मल अलग अलग सेक्शन के 4 लोग तुम लोग खड़े हो जाते हो, गर्ल्स एंड बॉयज़ यू आई एम टॉकिंग अबाउट, अपना अपना गैंग बना लेते हो, सब लोग पकड़े जाते हो कि सुभाष सर पिटाई करते हैं, गो टू योर क्लास। इनफॉर्मल आप क्या कर रहे हो, according to the rules and regulation of the organization of the school, you are not supposed to stand in the corridors, but कभी अपने दोस्त से बात करने के लिए आप लोग आकर खड़े हो जाते हो, इनफॉर्मली गॉसिप करते हो, बिकॉज वो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी पीपल अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, इट डेवलप्स ऑटोमेटिकली, राइट। चलो अभी आज सिर्फ इनफॉर्मल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, बाद में इसके फीचर्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे, बिकॉज मंडे आई एम गोइंग टू हैव अ टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो, संडे इज विद यू, राइट। दिस टाइम आई वॉन्ट वेरी गुड मार्क्स। हैव अ गुड लर्निंग, थैंक यू।